A metallic rod of mass m and length L is supported by two vertical alternately spring of spring constant K. One spring is at the end, another at the middle of the rod. The rod is hinged about O. Calculate the time period. There are a number of methods to solve such problem. Firstly, I am taking the torque method. So we are taking torque about point O. देखो, if you slightly rotate this rod and let you say this angle of rotation is given to theta, then one thing is clear to all of you. Here one extension in the spring and here will be also extension in the spring, and we all know theta is given by arc upon radius, and arc is written as the theta into radius. So this is the one arc and this is another arc. So theta into radius, if length is L, we will say here the expansion is known as the theta into L by 2, and here the expansion is known as the theta into L. It means the rheosteric force which will act here, that is given in this direction, K into X. It means it is K theta into L. Here the rheosteric force is given by K into L, K into theta into L by 2. So we are taking the torque about the point O, that is instant axis of rotation. So torque about O is written as the F into perpendicular distance. Here I will say this force is K theta L, and distance from the axis of rotation is also L, plus this force is K theta L by 2, and distance from the axis of rotation is also L by 2. So finally we calculate torque is given by K theta into L square plus K theta into L square by 4. And we all know torque is given by I alpha. Moment of inertia with respect to the instantaneous axis of rotation is given by 1 by 3 ml square into alpha. Equate both the equation, you will get 1 by 3 ml square alpha equal to K theta L square, चलो अभी लिख लो, K theta L square plus K theta L square by 4. देखो L square यहाँ से और इधर से भी कॉमन लेके आपने कैंसिल कर दिया. अब यहाँ से अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो, K theta इन K theta by 4 यानी 5 by 4 K theta. So it is 5 by 4 K theta. यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 5 3 जा 15 K अपॉन 4, ये मास भी नीचे चला जाएगा, m इक्वल टू थीटा. कंपेयर विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा. ओमेगा की वैल्यू आई आपकी रूट 15 K अपॉन 4m. सो टाइम पीरियड इज गिवन बाई 2 पाई बाई ओमेगा. सो इट इज 2 पाई root 4m upon 15k. So answer of this problem is 2 pi root 4m by 3 5k. So this is the answer. Now we will go for another. Okay, now we will discuss the energy method. Suppose we say this rod is inclined at angle theta like this. Angular speed at any time is written as the d theta by dt, and we are writing it is theta naught. हम इसको ओमेगा नहीं लिख रहे बिकॉज ओमेगा वी आर गिवन सिंबल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो टोटल एनर्जी एट दिस इंस्टेंट, एक यू कैन सेट एनी इंस्टेंट जहां पे आपका डी थीटा बाई डी टी है, इट इज गिवन बाई, यहाँ पे एनर्जी एक्सटेंशन कितना हो हमने पहले निकाल लिया, दैट इज थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. सो इट इज गिवन बाई एल बाई 2 इंटू थीटा, और यहाँ पे स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितना हुआ, दैट इज एल इंटू थीटा. तो स्प्रिंग में यहाँ एनर्जी कितनी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर में हाफ के एल थीटा का होल स्क्वायर. इधर एनर्जी कितनी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर में एल बाई 2 इंटू थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब एक रोटेशन एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन,
विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, उसको आप क्या लिखते हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हम थीटा के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हाफ आई विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, और ओमेगा को हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज डी थीटा बाई डी टी इज थीटा नॉट, तो यू विल से इट इज थीटा नॉट का स्क्वायर। दिस इज गिवन बाई कांस्टेंट, दैट इज, इसको हम क्या लिखेंगे जगह कांस्टेंट लिख लेते हैं, कांस्टेंट। ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप वी आर राइटिंग, दिस इज हाफ k L square, then that is theta square plus 1 by 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 1 by 8 k L square theta square plus 1 by 2, moment of inertia with respect to this point कितना हो जाएगा, 1 by 3 ml square, and that is given by थीटा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। यह तक हमने लिख लिया, ठीक है। नो वी हैव टू एडजस्ट अगेन, फर्दर सॉल्व इट, इट इज 1 by 2, इट इज 1 by 8, सो 1 by 2 plus 1 by 8, this is given by 5 by 8, okay, so it is 5 by 8 k थीटा स्क्वायर, एल स्क्वायर तो कॉमन लेके आपने काट दिया दोनों जगह से, प्लस 1 by 6 m थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है यहाँ तक। नो यू नो द स्टैंडर्ड इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। वहां पे वेलोसिटी थी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी थीटा डॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर जाए क्या आ गया, थीटा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको हम लोग रख रहे हैं इस इक्वेशन को। सो व्हाट वी कैन से, थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 5k बाई 8, और इधर थीटा डॉट करने के लिए आपने 1 by 6 m से डिवाइड किया था, तो यहाँ भी 1 by 6 m से आप डिवाइड करोगे तो 6 तो ऊपर चला जाएगा और m यहाँ रह जाएगा, ठीक है, एंड दैट इज थीटा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू देखो तो यू विल कैलकुलेट हियर, ओमेगा स्क्वायर इज गिवन बाय 6 5 30 अपॉन 8 k by m। फर्दर वी विल सॉल्व इट, it is 15 by 4 k by m, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, √15 k अपॉन 4m, और टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई बाई ओमेगा, सो इट इज फर्दर रिटन एज 2 पाई √4m by 15k, तो सेम आंसर विच यू हैव गॉट अर्लियर।